Hello everyone. In this video we have discussed about the sand replacement method for measuring the field density of the soil. So in the previous method we have discussed about the core cutter method for measuring the field density. So the basic concept of the measurement of the density is same date. Density is the ratio of mass upon volume or weight upon volume. So we have to measure the weight of the field soil and volume of the particular soil sample. Okay, so there are the different aspects from which we have measured these two things as we discuss in the core cutter. So in this sand replacement method, what we do basically we calibrate the sand, specific sand which is available in our laboratory, and calibrate a sampler, uh, which sampler is just like this. uh, this is calibratory container, bottom one, and uh, upper one. They are the two component. First component is bottom component, which is calibratory container, and upper one is a pouring cylinder, in which there are the arrangement of a slider through which the sand comes in this pouring cone shape. So I discussed 1 minute. Actually, the purpose of this pouring cylinder is pouring of sand. So we insert the sand from here. Okay, and this is the calibrating container. The volume of this container is known, and height is known. Okay, dia is known. Okay, so we measure the volume. So volume we known. We just insert this sand. This is a slider. Once we open the slider, or push pull the slider in, uh, pulling the slider, so the sand is comes in the calibrating container, and due to this shape of this pouring cone, the sand is come just like this. Okay, and when it is rested on this coning cup, so we after few time we stop this slider, and um, this container is separated this container from this upper assembly. Okay, so this type of shape we got, like this is cylinder, and this is shape of the, this is the sand which is come in this cylinder, and this type of shape of sand we got due to this shape, upper shape of pouring cone. Okay, so what we do next, we just measure the weight of this particular sand into this particular calibrating container. And what is the use of this particular weight? We direct correlated this particular sand into the field soil. How? Let's comes in the theory part of this. ओके, सो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने कंटेनर, कैलिब्रेटिंग कंटेनर का वेट ले लिया है. अब सॉरी फॉर दिस, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. In this method, the unit weight of soil is computed with the two stages by the use of standard sand, as I earlier said, that passes through 600 micron sieve. The thing which is, we have first passed the soil from 600 micron sieve. So after sieving this sand, we got it the sand which is passes from 600 micron sieve, and the retaining our 300 micron sieve. This thing uh,
like 600 micron Cu, or this is 300 micron Cu. So we want to soil which pass from 600 and return from 300. So this is standard sand, which is particle range is between 300 to 600 micron. Okay, so this is the size of sand which is used for the calibrating the container. And first stage bulk density of the sand is being computed. In second stage the bulk density of soil is computed. There are the two part of this test. In first stage we have to in laboratory calibrate the sand and computed the bulk density of sand. Remember that bulk density of sand and bulk density of the filled soil is both are the different, but by using this bulk density of sand we directly computed the fill density of soil. Okay, so in first step, pouring the cylinder with pouring cone is placed over the level ground and cylinder is computed filled with the sand. Mass of the sand filling the pouring cylinder is noted m1. As I say, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो pouring cylinder है ना, ये pouring cylinder है आपका, ये है pouring cylinder, सॉरी, पोरिंग सिलेंडर पोरिंग कोन के साथ हम क्या करेंगे कि ग्राउंड लेवल पे है ना, एंड द सिलेंडर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द सैंड, m1 इज नोटेड. आपको क्या करना है कि m1 नोट करना है. फिर आप क्या करेंगे, शटर इज ओपन, अलाउ टू सैंड टू फॉल इनटू द पोरिंग कोन, मास ऑफ द सैंड फिलिंग द पोरिंग कोन इज नोटेड m2. देखिए क्या करना है, पहले स्टेप में आपको यहाँ पर आपका जो ये सिलेंडर है, ठीक है, सॉरी, सो फर्स्ट स्टेप में हमें m1 निकालना. m1 मतलब क्या है कि आप ये पोरिंग सिलेंडर आपका है, यहाँ पे ये पोरिंग सिलेंडर, इसको आपने बंद कर दिया. यहाँ पे जितनी भी सॉइल आपकी आई है यहाँ से यहाँ तक, इसको फिल कर देंगे और इसका वेट ले लेंगे. तो ये हो गया आपका m1, ठीक है. और आपने इसको एक ग्राउंड लेवल पे रखा है, मतलब आपने इस अपर असेंबली को किसी एक प्लेन पेपर के ऊपर पुट करा है, ठीक है. यहाँ से उठा करके ये असेंबली है, यहाँ पे आपका होल है, इसे आपने एक कागज़ पे रख दिया है. तो ये तो हो गया m1. फिर क्या करा आपने, यहाँ से इसको ओपन करा है स्लाइडर को और इसे पास होने दिया है, ठीक है. तो पास होने के बाद जितनी भी आपकी सॉइल है वो इस कागज़ पे आ रही है या फिर इस पोरिंग कोन के अंदर आ रही है, किसी भी कंटेनर पे आ रही है. ऑब्वियसली ये तो सॉलिड है इतना इतना, तो जितनी सॉइल यहाँ पे आएगी, जितनी सैंड यहाँ पे आएगी उसका आप वेट ले लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका m2. सैंड फिलिंग द पोरिंग कोन इज नोटेड एज ए m2. ओके, गोट इट, यू गोट m1 एंड m2. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप पार्ट हो ना, ये पहली स्टेप का पार्ट है. ये देखिए यहाँ पे ये m1 हो गया आपका. फिर आपने इसको खोला और ये जो नीचे जितनी भी सॉइल आई है ये आपकी हो गई m2. अब क्या हुआ, आपने पोरिंग सिलेंडर को आपने कैलिब्रेटिंग कंटेनर के ऊपर प्लेस कर दिया है, इसके ऊपर आपने इसको प्लेस कर दिया है. आपने अब क्या करा है, इस पूरी असेंबली को बॉटम असेंबली के ऊपर प्लेस कर दिया है, ठीक है. तो प्लेस करने के बाद क्या होगा, और अलो कर दिया उसे फिल होने के लिए, मतलब आपने आपका जो रिलीवर है उसको रिलीव कर दिया है. तो वहाँ से जितनी भी सैंड है वो क्या करेगी, कैलिब्रेटिंग सिलेंडर के अंदर चले जाएगी. ये थर्ड स्टेज देखिएगा. तो अब आपको क्या करना है कि द मास ऑफ द सैंड लेफ्ट इन द पोरिंग सिलेंडर इज़ नोटेड एज m3. मतलब पोरिंग सिलेंडर के अंदर कितना मास अभी बचा हुआ है. जैसे सपोज़ आपका पूरा जो m1 था, आपने पहले m1 नोट कर लिया, m2 नोट कर लिया. अब क्या करा आपने, फिर से इसे फुल कर दिया, ठीक है, ऊपर से पोरिंग सिलेंडर को फुल कर दिया. और अब आपने क्या करा, इसको इसके ऊपर प्लेस करके कैलिब्रेटिंग कंटेनर के ऊपर प्लेस करके स्लाइडर को ओपन करा.
और जितनी भी मिट्टी यहाँ से निकल रही है, जितनी भी सॉइल यहाँ से निकल रही है, उसको जालो करा और उसे मेज़र करा। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह से आपका होगा। तो ये जो आपने नोट करा, जितनी भी सॉइल सैंड लेफ्ट इन द पोरिंग सिलेंडर, मतलब एक लेवल तक वो गिरती रहेगी उसमें, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ मिनट बाद वो उसमें से नीचे जाना बंद हो जाएगी। तो जब नीचे जाना बंद हो जाए उस पॉइंट पे आप रिलीवर को बंद कर देंगे और जितनी भी सॉइल पोरिंग सिलेंडर के अंदर लेफ्ट है उसका मेजरमेंट कर लेंगे, उससे आपने नोट कर देंगे M3। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप मेज़र करेंगे मास ऑफ द सैंड फिलिंग इन द कैलिब्रेटिंग कंटेनर। तो ऑब्वियसली कितनी सॉइल जो है आपके कैलिब्रेटिंग कंटेनर के अंदर गई है, आपको ये मेज़र करना। तो आप कैसे मेज़र करेंगे, M1 इज़ द टोटल मास। ठीक है, टोटल मास जो कि पोरिंग सिलेंडर के अंदर था, उसमें से क्या मास माइनस हुआ, M2 क्या था, जो कोन वाला मास है, जो ऊपर रहने वाला मास था। एक प्लेन कागज़ के ऊपर आप रख करके देख लेंगे कि कितना मास जो है वो कोनिंग सिलेंडर का है। ठीक है, वो आपने मेज़र कर लिया, तो उसको माइनस कर देंगे, M1 माइनस M2 और M3 जितना मास जो कि आफ्टर इंसर्टिंग द सॉइल और फिलिंग द सॉइल इन कैलिब्रेटिंग कंटेनर लेफ्ट इन द पोरिंग सिलेंडर, तो वो हो गया आपका M3। तो M1 माइनस M2 माइनस M3 जब आप माइनस करेंगे तो आपको जो फाइनल मास है, जो मास उस पर्टिकुलर सिलेंडर में रेस्ट रहेगा, वो आपको पता लग जाएगा, वो है आपका M डैश। ठीक है, तो आपकी सैंड की डेंसिटी क्या हो गई, M डैश अपॉन में वॉल्यूम आपको नोन है यहाँ पे, तो ये M डैश अपॉन में नोन या M1 माइनस M2 माइनस M3 अपॉन में V, ये आपको पता लग गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोसीजर है, ये कैलिब्रेशन कहलाता है सैंड का, है ना। कैलिब्रेशन मतलब आपको डेंसिटी मेजर करना है। अब इस कैलिब्रेशन का यूज़ फील्ड में कैसे होगा, ये बहुत लॉजिकल है, इसे देखिएगा आप, है ना। अब आपने क्या करा, फील्ड में आपने क्या करा, एक एक्सकेवेशन करा, एक गड्ढा खोदा आपने सॉइल का, जो भी आपको टेस्ट करना है। अब उसमें क्या करा, एक आपने लगभग आपका 13 सेंटीमीटर का आपका इसकी हाइट होती है कैलिब्रेटिंग सिलेंडर की, तो उतनी हाइट का आपने एक होल करा। पोरिंग सिलेंडर विच कोन इज प्लेस्ड ओवर द एक्सकेवेशन एंड सैंड इज अलाउड टू रन इनटू द एक्सकेवेशन। आपने एक 10 सेंटीमीटर अनुमानित साइज का एक डायमीटर का और 13 सेंटीमीटर एक अप्रोक्सीमेट साइज का आपने एक होल करा रफली किसी एक टूल से, और उस होल के अंदर आपने क्या करा, जो आपका पोरिंग सिलेंडर था जिसमें कोन था, उसको आपने प्लेस कर दिया एक्सकेवेशन में और उसे अलो कर दिया। जैसे कि आपने पहले कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में करा था, सेम प्रोसेस आपने वहाँ करिए, उस होल के अंदर करिए। ठीक है, जैसे सपोज इसको इस तरह से देखिए, आपने क्या करा, जैसे ये सॉइल है, ये ग्राउंड लेवल है, फील्ड है, तो यहाँ आपने क्या करा, एक रेंडमली 13x10 डाया का एक होल कर लिया, यहाँ से सारी मिट्टी आपने कलेक्ट कर ली। ये मिट्टी आपने बहुत प्रिसाइसली कलेक्ट करी है, इसका एक भी दाना या एक भी पार्टिकल इसका आप बाहर ना गिरे, इस तरह से आपने इसको कलेक्ट कर ली। इसकी साइज़ ज़रूरी नहीं कि एकदम 100% ये स्केल में हो, एक सूद में हो, ये रफली आप किसी भी तरीके से आप इसको गड्ढा खोद सकते हैं, इसका ज़रूरी नहीं कि ये सिलेंड्रिकल शेप में ही हो। आपने ये कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपने जो आपका जो कंटेनर था जिसमें आपका सिलेंडर है और होलो कोन है, उसको आपने यहाँ पे रेस्ट करा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने वो रख दिया कंटेनर, और यहाँ से वो ये आपका पोरिंग सिलेंडर है और ये पोरिंग कोन है, और यहाँ से वो सैंड आपकी फॉल होगी। तो एक लिमिट तक ये सारी फॉल होगी, और फॉल होने के बाद अब क्या होगा, फॉल होना बंद हो जाएगी। तो जहाँ पे बंद हो आप उस स्लाइडर के थ्रू उसको बंद कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि आपका कुछ सैंड जो है वो इस पर्टिकुलर होल के अंदर इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो अब आपने लैब में क्या कर रखा है, लैब में आपने इसकी डेंसिटी मेज़र कर रखी है सैंड की, है ना। अब इस सैंड की डेंसिटी से आप कैसे इस पर्टिकुलर होल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे तो एक आपने रफली वॉल्यूम का एक होल करा था, है ना, इसका वॉल्यूम अननोन है, हमें डेंसिटी निकालनी तो क्या चाहिए, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम अननोन है, लेकिन मास आपने क्या करा, जितनी भी सॉइल यहाँ से निकली है उसका मास आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो आपको मास पता है, बस आपको इसका वॉल्यूम पता लग जाए तो आप ये फील्ड की डेंसिटी मेज़र कर सकते हो। तो अब आपने क्या करा, इसके लिए एक कोई कंटेनर रखा, जो आपके पास पोरिंग सिलेंडर था, उस पोरिंग सिलेंडर से यहाँ पे रेत भर दी है, और रेत भरने के बाद आपने उसको कट कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ कोण भी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस कोण का मास पता है, ये है m2, ठीक है। और आपके पास जितनी भी सॉइल थी, आप नॉन सॉइल थी m1 आपको पता थी, और अब कितनी सॉइल बची है वो आपने मेज़र कर ली, उसको आपने नोट कर दिया m3, ठीक है सपोज। तो m1 माइनस m2 माइनस m3 जब आप करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितनी मिट्टी इसके अंदर, कितनी सेंड इसके अंदर, इस होल के अंदर, फील्ड वाले होल के अंदर गई है। ये सेम प्रोसेस हम पहले कैलिब्रेशन में कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको जब ये टोटल मास पता लग जाएगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पे यदि आपको इसका टोटल मास पता लग गया सेंड का, ठीक है, तो सेंड की डेंसिटी से मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेंड, आपको मास पता है, आपको सेंड की डेंसिटी पता है, तो आपको वॉल्यूम पता करना है कि कितना वॉल्यूम आपका यहाँ पे गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम पता कर लेंगे। तो इस वॉल्यूम से अब क्या होगा, आपने जब यहाँ पे वॉल्यूम पता कर लिया सेंड का, ठीक है, तो इस सेंड के वॉल्यूम का आप यूज़ करेंगे सॉइल के वॉल्यूम में या फिर फील्ड सॉइल के वॉल्यूम को, डेंसिटी को मेज़र करने में, ठीक है। कैसे, देखिए एक बार रिमाइंडर देख लीजिए। मास ऑफ द सेंड कितना हुआ, या आपने कैलकुलेट कर लिया। सेंड एक्सकेवेशन में कितनी गई, m1 माइनस m2 माइनस m4 यहाँ पे इन्होंने दिया। m4 क्या है, मास ऑफ द सेंड लेफ्ट इन द पोरिंग सिलेंडर। जब आपने एक्सकेवेशन करा, गड्ढा करने के बाद जब उसको डाला, सपोज ये गड्ढा है, ठीक है, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो अब इसमें कितनी मिट्टी गई है अंदर, ये आपको निकालना है m4। तो m4 आप डायरेक्टली m4 तो पोरिंग सिलेंडर में कितना मास बचा है, तो m1 माइनस m2 माइनस m4 यहाँ पे इसमें डिनोट करा है, क्योंकि m1 और m2 तो कांस्टेंट है। आपका वेरिएशन उसमें होगा जब होल में कितना सॉइल जा रहा है, वो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में जाएगा या फिर फील्ड होल में जाएगा, दोनों में सॉइल का, दोनों को हम m3 डिनोट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे हमने m4 डिनोट करा है, ठीक है। और यहाँ से आपने ये कैलकुलेट कर लिया सेम चीज़, और आपको वॉल्यूम पता लग गया। अब वॉल्यूम आपको जैसे पता लग गया है, तो आपको डेंसिटी निकालना, तो आप किस तरह से निकाल लेंगे, डेंसिटी विल बी इक्वल टू इस तरह से, मास इंटू सेंड डेंसिटी m1 m2 m4, या फिर मैं इसको डायरेक्ट आपको बताऊं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए आपको वॉल्यूम पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ होल आपको पता लग गया, ठीक है। आपको मास एक्सकेवेशन का मास ये भी आपको पता लग गया, तो आप डेंसिटी कितनी हुई आपकी, मास ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन। और ये वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन हमने कैसे निकाला था, ये हमने ऐसे निकाला था कि आपको ये पता लग गया कि कितनी सेंड आपके फील्ड में उसके होल के अंदर गई है, सपोज़ उसका मास आपको पता है। सेंड की डेंसिटी क्या थी, सेंड की डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम, तो आपको ये मास पता है कि कितनी सेंड उसके अंदर होल के अंदर गई है। सेंड की डेंसिटी हमने ऑलरेडी कैलिब्रेटेड करके निकाल रखी थी, और ये वॉल्यूम है। तो यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई करने से आपको ये पता लग गया, सॉरी हमें वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी ऑफ सेंड। तो ये आपको वॉल्यूम निकल गया, मास अपॉन में डेंसिटी ऑफ सेंड, और इस वॉल्यूम के ऊपर आपने एक्सकेवेटेड मास कर दिया। तो यहाँ पे यदि मैं m का मल्टीप्लाई करूँगा, m डैश का मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर चल जाएगा, m डैश मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सेंड अपॉन में ये m क्या है, डेंसिटी मास ऑफ सेंड इन एक्सकेवेशन, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। m1 माइनस m2 माइनस m4 इज द मास ऑफ सेंड इन एक्सकेवेशन, m डैश रिप्रेजेंटेड द मास ऑफ सॉइल एक्सकेवेटेड और डेंसिटी ऑफ सेंड। ओके, इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसका भी एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा जो कि अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, आगे हम देखेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरह से इसे करते हैं। ओके।